Hello student. Now, today we'll start the difference between adsorption and absorption. Difference क्या है exactly absorption का और adsorption का, that we'll see over here point to point. ठीक है. See here the comparison between adsorption and absorption. Adsorption is generally the things where the matter is concentrated only at the surface. ठीक है. In adsorption the matter is concentrated only at the surface and does not penetrate through the surface to the bulk of the adsorbent. So that's why adsorption is a surface phenomenon. Understood? In absorption क्या होता है absorption में कि generally one matter is accumulated on the surface of another matter. You are getting my point? One matter is accumulated on the surface of another matter. That's why adsorption is said to be the surface phenomenon. On the other hand, what is absorption? In the absorption, the absorbed matter is uniformly distributed inside as well as at the surface of the bulk of the substance. Understood? Absorption में एक substance uniformly distribute होता है in the body of the another substance. That's why absorption is a bulk phenomenon. Understood? Absorption क्या है? It is a bulk phenomenon. You are getting my point? Adsorption को सरफेस फेनोमेनन कहते हैं एंड एब्जॉर्प्शन को बल्क फेनोमेनन कहते हैं बिकॉज एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के ऊपर ही रहेगा. ऑन दी अदर हैंड एब्जॉर्प्शन में एक मॉलिक्यूल सरफेस पे तो रहता है थोड़े बहुत बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गोज इनसाइड द बॉडी. जैसे एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल मिल्क एंड अ स्पून. इफ़ यू हैव अ ग्लास ऑफ अ मिल्क and if you stir the milk with the spoon, the particle of a milk only accumulate on the outside surface of a spoon. That is adsorption. And if you have a glass of a water and in that you put a sponge, then the water molecule goes inside the bulk of the sponge. So that is the example of a absorption. Understood? Okay, chalo. What is the second point of adsorption? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट. बच्चों दिस वर्ड एडजॉर्बेट ये एक्चुअली आएगा लेटर ऑन. एडजॉर्बेट यानी जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हो रहा है दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट. अंडरस्टूड? एडजॉर्बेट यानी क्या? द सब्सटेंस विच गोइंग टू एडजॉर्ब्ड ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर सब्सटेंस, उसको एडजॉर्बेट कहते हैं. सो लेटर ऑन इन दिस वीडियो ओनली दिस द टर्म्स इन्वॉल्व इन एडजॉर्प्शन आर देयर ओनली. ठीक है. सी हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट इज हाई ओनली एट द सर्फेस ऑफ द एडजॉर्बेंट. So these two words are important actually adsorption process में. One is adsorbate and दूसरा है adsorbent. Adsorbent यानी क्या? जो surface area provide कर रहा है for the adsorption. Adsorbent PENT. Adsorbent means the surface area whose provide for the adsorption is known as adsorbent and adsorbate यानी जो adsorb हो रहा है that is called adsorbate. Understood? So ये सिर्फ word याद रखना. Later on we'll discuss in detail only. Now in this case the concentration of adsorbate is high only at the surface of the adsorbent. ठीक है. एक जो गैस एडजॉर्ब हो रहा है ऑन द अनदर सरफेस तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन हाई है एट द सरफेस ओनली. ओके, द कॉन्सेंट्रेशन इज एट द हायर साइड एट द सरफेस ओनली in case of adsorption. On the other hand, in absorption, concentration of adsorbate is uniform throughout the bulk of the adsorbent. Understood? Absorption में क्या हो रहा है कि एक substance दूसरे substance के bulk में जा रहा है. You are getting my point? That's why concentration of that substance is uniformly distributed. Okay? Or it is uniform throughout the bulk of that another substance. ओके तो एडजॉर्प्शन में एक पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ दूसरे पार्टिकल के सरफेस के ऊपर रहेगा. एब्जॉर्प्शन में एक पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द अनदर पार्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर द एडजॉर्प्शन इट इज़ डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर. एडजॉर्प्शन it is depend on temperature and pressure only. Understood? So pressure and temperature dependent quantity है adsorption and here absorption is independent of temperature and pressure. अब वैसा क्यों है एक्चुअली? टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट क्यों है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा था कि एडजॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस. अंडरस्टूड? एडजॉर्प्शन क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी क्या बच्चों? द प्रोसेस विच गिव्स द हीट एनर्जी और विच रिलीज द एनर्जी इनटू द एटमॉस्फेयर. सी बच्चों, कोई भी प्रोसेस होती है
केमिकल रिएक्शन होता है जनरली। चलो केमिकल रिएक्शन के बारे में ही बता दें, क्योंकि एज 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू मे अवेयर ऑफ दिस एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। तो वहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। उसी के साथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन भी था। ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी दोज रिएक्शन वेयर द हीट इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। आई रिपीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन वेयर हीट इज गिवन आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। एंड व्हाट अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन? Endothermic reactions are those in which the heat is absorbed by the reaction system. Correct na? Endothermic reaction is the reaction in which the heat is absorbed by the reaction system. ठीक है? So exothermic reaction, heat is given out. Endothermic reaction, heat is gained or heat is accepted or absorbed. Understood? तो यही है this adsorption is exothermic process. एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी जब भी एड्जॉर्प्शन होगा, अंडरस्टूड, तो सम सॉर्ट ऑफ अ हीट एनर्जी, डेफिनेटली वो हीट एनर्जी बहुत ही कम होगी, बट सम सॉर्ट ऑफ अ हीट एनर्जी डू रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, अब एड्जॉर्प्शन इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्पेशली विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर। अब समझ लो कि आपने एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर लिया है, यू आर हैविंग अ टेबल, एक मेटालिक टेबल है और उस मेटालिक टेबल पे डिफरेंट गैसेस एड्जॉर्ब हो रहा है। ओके, अब एक एड्जॉर्प्शन का रेट अच्छा खासा है एट पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर। समझ लो कि रूम टेम्परेचर 20-21 डिग्री सेल्सियस है, एंड एट दैट टेम्परेचर द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल इज क्वाइट गुड। अब आप क्या कर रहे हो, उस टेम्परेचर के टेबल के बेस को हीट कर रहे हो, some sort of a heat दे रहे हो, understood? if you are giving a more heat to the surface of a table only, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व करोगे कि the rate of adsorption is decreases, the rate of adsorption of a gas on the surface of table is decreases। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज देखो, एज आई सेड, एड्जॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हीट तो ऑलरेडी दी जा रही है। So अगर आप heat release into the atmosphere, when the overall process is going on, the heat is given out into the atmosphere only, understood? जब आप already heat मिल रही है या फिर निकल रही है from the whole process of adsorption of a gas on the surface of a table, और उसमें भी आप और heat addition कर रहे हो heat की, तो क्या होगा? तो प्रोसेस जो है वो फास्ट नहीं होगी, तो प्रोसेस का रेट यानी प्रोसेस का स्पीड कम हो जाएगा, अंडरस्टूड? ऑन द अदर हैंड, अगर आपने हीट नहीं दी और मे बी हीट निकाल दी, या फिर यू कैन से द टेम्परेचर और डाउन कर दिया, समझो रूम टेम्परेचर जैसे मैंने बोला 20-21 डिग्री सेल्सियस है, तो और डाउन कर दिया और मे बी 15 डिग्री सेल्सियस पे डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज, अंडरस्टूड? रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज, यानी हायर टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन का रेट कम हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, एंड at low temperature the adsorption rate is increases, understood? And that's why it is said that the adsorption is a temperature dependent quantity. On the other hand, absorption is independent of temperature and pressure. same example ले रहे हैं, एक बकेट है जिसमें वाटर है और हमारे पास स्पंज है, अब वो हम लोग स्पंज डाल रहे हैं एट 21 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर सभी सेम कंडीशन लग रहा है, तो भी आई थिंक सो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ अ स्पंज। वही हम लोग स्पंज है, सेम साइज ऑफ अ स्पंज, वाटर बकेट फुल ऑफ वाटर ओनली, और आपने वो प्रोसेस फॉलो की 15 या 14 या 10 डिग्री सेल्सियस पे, देन ऑल्सो विल बी गेटिंग द सेम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ना तो एड्जॉर्प्शन का रेट कम होगा ना तो एड्जॉर्प्शन का रेट स्लो होगा। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट द एड्जॉर्प्शन इज अ independent of temperature and pressure, understood? Absorption is independent of temperature and pressure. So see the third point, adsorption, it is depend on temperature and pressure, absorption, it is independent of temperature and pressure. Okay, now next fourth point on the adsorption, it is accompanied by evolution of a heat known as heat of adsorption. See, as I said, adsorption is exothermic process ना, एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सो ये जब प्रोसेस होगी देन सन्स ऑफ हीट इज गिवन आउट एक्चुअली, एंड दैट इज सेड टू बी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ओवर हियर।
ठीक है. So here in case of adsorption, it is accompanied by evolution of a heat only. Heat is evolved during the process, and that heat is said to be the heat of adsorption. On the other hand, in absorption, see the fourth point, it is not accompanied by any evolution of absorption of a heat. During the process of absorption, neither the heat nor heat given out to the atmosphere nor take, taken out from the atmosphere. Okay, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हीट तो दी भी नहीं जाती एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर को, या फिर एटमॉस्फेयर से हीट ले भी नहीं जाती. अंडरस्टूड. ओके, सी द फिफ्थ पॉइंट फॉर द एड्सॉर्प्शन, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया. Okay, it depends on surface area, and it is here absorption, it is independent of surface area. ठीक है, it is independent of surface area. See here, अगर आपके पास सरफेस है, समझ लो कि एक अगेन वी आर लुकिंग फॉर द प्लेटफॉर्म फॉर द एड्सॉर्प्शन ओनली, जहाँ पे एक है आपके पास, समझ लो आपका टेक्स्ट बुक जैसा एक साइज़ है, एक प्लेटफॉर्म फॉर द एड्सॉर्प्शन, और दूसरा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका एक स्टडी टेबल होगा, उतना बड़ा साइज़ है. अंडरस्टूड. एक स्टडी टेबल का एक साइज़ प्लेटफॉर्म है, सरफेस एरिया, एंड सेकंड आपका टेक्स्ट बुक साइज़ जैसा सरफेस एरिया. कौन से सरफेस एरिया पे ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा? जो मटेरियल या फिर जो सब्सटेंस ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, बट ऑब्वियस उसके पास और उसके सरफेस पे उतना एड्सॉर्प्शन होगा. अंडरस्टूड. सो आपका जो स्टडी टेबल है providing more surface area, definitely it shows more rate of adsorption, okay, than the surface which is your means surface which is which do have a size comparable to the your textbook only. So bigger surface area, rate of adsorption is more. Smaller surface area, adsorption कम होगा. Understood. So this is all about these things about the surface area where adsorption is depend on the surface area. Absorption is do not have any do not have any effect on the surface area. Rate of adsorption होगा तो उतना absorption होगा तो होगा ही. Understood. And lastly the example, adsorption of a gas or a liquid like acetic acid by activated charcoal. This is one of the example of adsorption. Activated charcoal used to adsorb the acetic acid, used to adsorb the different gases. That is the example of adsorption. What about absorption? Absorption of a water by cotton, absorption of a ink by blotting paper. These are some example. Okay guys, so these are the total 6 point. ये 6 पॉइंट है फॉर दी एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पे आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट लर्न कर लेना है. ओके, 4 पॉइंट या फिर मैं तो कहूँगा 5 ही पॉइंट लर्न कर लो. मे बी इन केस कभी एग्जाम में एक भूल गए, सो इट इज़ बेटर टू हैव अ 1 मोर पॉइंट इन अवर बैग. अंडरस्टूड. सो दैट्स वाई आप पाँचों के पाँचों पॉइंट क्लियर कर लो. ओके, एड्सॉर्प्शन के एंड एब्सॉर्प्शन के, एंड दिस इज द नोट्स ओनली. यू हैव टू राइट डाउन इन द नोटबुक एज वेल कि ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एड्सॉर्प्शन एज वेल एज एब्सॉर्प्शन कंपैरिजन. ओके गाइज, चलता है फिर द नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टर्म्स इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन. यहाँ पे सिंपल से टर्म हम लोग लर्न करेंगे. डिफरेंट टर्म्स वी आर हैविंग इन द एड्सॉर्प्शन ओनली. सो द बेसिक 2 टर्म्स आर, you can see over here the 2 terms, the 2 most important terms in the adsorption. One is adsorbent and second one is adsorbate. Okay, adsorbent and the adsorbate. See here, adsorbent, 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 the first one. Adsorbent is the material or a substance present in the bulk on the surface of which adsorption takes place is called adsorbent. Understood. Adsorbent यानी क्या? This is the material or substance present in the bulk on the surface of which adsorption takes place. जिसके ऊपर adsorption हो रहा है. Understood. That is said to be the adsorbent. Understood. Okay. Adsorption यानी क्या? Sorry. Adsorbent यानी क्या? This is the material surface present in the bulk on the surface. Present in the bulk on the surface of which adsorption takes place. जिसके ऊपर adsorption हो रही है. अंडरस्टूड. तो वो जो सब्सटेंस आके एड्सॉर्ब कर रहा है, दैट इज सेड टू बी द एड्सॉर्बेंट. ओके, ऑन द अदर हैंड एड्सॉर्बेट इज व्हाट? इट इज द सब्सटेंस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट. अंडरस्टूड. एड्सॉर्बेट यानी क्या? इट इज द सब्सटेंस गेटिंग एड्सॉर्ब्ड ऑन द एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट. अब देखो, दोनों की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी. एक एग्जाम्पल अगेन आई एम गिविंग यू टू आइडेंटिफाई एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट.
अंडरस्टूड। अब देखो, कंसिडर करो कि यू आर हैविंग अ बिग सरफेस और उसके ऊपर गैस, डिफरेंट गैसेस एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अंडरस्टूड, यू आर हैविंग अ बिग flat surface and in that on that surface only the different gases gets absorbed. Understood। अब इसमें से adsorbent कौन सा हुआ and adsorbate कौन सा हुआ? Adsorbate यानी first of all we'll talk about adsorbate। adsorbate यानी substance getting absorbed on the adsorbent। Understood। adsorb यानी जो भी substance absorb हो रहा है that is called adsorbate। You are getting my point? The substance get absorbed that is called adsorbate। सो गैसियस पार्टिकल जो होंगे वो हो जाएगा एड्जॉर्बेंट, और जो भी मटेरियल है जो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेंट। अंडरस्टूड। सो एड्जॉर्बेंट जिसके ऊपर हो रहा है एड्जॉर्प्शन दैट इज एड्जॉर्बेंट, एंड जो एड्जॉर्ब हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेट। आई रिपीट बच्चों, एड्जॉर्बेंट यानी जो भी मटेरियल है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर द एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ओनली, जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रहा है दैट इज एड्जॉर्बेंट, एंड जो एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट दैट इज नोन एज एड्जॉर्बेट। अगर हमारे पास सॉलिड एंड गैस ये दो सब्सटेंस है और गैस एड्जॉर्ब हो रहा है ऑन द सर्फेस ऑफ सॉलिड, तो गैस हो जाएगा एड्जॉर्बेट एंड सॉलिड मटेरियल इज अ एड्जॉर्बेंट। अंडरस्टूड। गैस इज एड्जॉर्बेट एंड सॉलिड मटेरियल ये है क्या है? एड्जॉर्बेंट। Understood? Okay. Now the next term in the adsorption process is desorption. चलो desorption। बच्चों desorption is actually opposite of adsorption। अब adsorption में क्या होता है? एक पार्टिकल या फिर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे मटेरियल के दूसरे सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब किया जाता है, एक्यूमुलेट होता है, या फिर यू कैन से कलेक्ट होता है। अंडरस्टूड। वन पार्टिकल इज कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ अनदर पार्टिकल। इन द केस ऑफ डिसॉर्प्शन अपोजिट प्रोसेस होगी, जो भी एड्जॉर्ब मटेरियल होगा ऑन द सरफेस ऑफ अनदर वन वो निकल जाता है वहाँ से, ओके वो वहाँ से निकल जाता है, सो दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। सी हियर द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एन एड्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट वॉज एड्जॉर्ब्ड is called desorption। desorption यानी क्या? desorption is the process of a removal of adsorbed substance or adsorbed material from the surface on which it was adsorbed, that is called desorption। understood? यानी this is opposite of adsorption, यानी जो भी material adsorb है, ओके जो भी एड्जॉर्ब है ऑन द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, तो वो एड्जॉर्बेंट वापस रिमूव होता है या फिर निकल जाता है वहाँ से। अंडरस्टूड। सो दैट प्रोसेस इज सेड टू बी डिसॉर्प्शन। Okay guys, and the last one is the sorption। Okay, अब sorption यानी क्या? Actually this is a process where both adsorption and absorption, understood? Adsorption and absorption occur simultaneously, that is known as sorption। sorption यानी ऐसी प्रोसेस जहाँ पे adsorption भी हो रहा है and absorption भी हो रहा है। You are getting my point? एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है एंड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। सो ये दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली होती हैं तो वो उस प्रोसेस को कहा जाता है सॉर्प्शन। अंडरस्टूड। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन वी हैव अ चॉक, हमारे पास एक चॉक है और एक पॉट है जिसमें कि या फिर एक कंटेनर है जिसमें कि इंक है। अंडरस्टूड। अब इंक पार्टिकल यानी क्या बच्चों? इंक में एक्चुअली पिगमेंट्स होंगे, कलर पिगमेंट होंगे, ब्लू इंक, ब्लैक इंक, वॉट एवर जो हमारे पास इंक है तो वो कलर पिगमेंट रहता है और उसमें उसका एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट भी रहता है। करेक्ट, उसमें एक सॉल्वेंट भी रहता है जिससे कि इंक पार्टिकल्स को प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में प्रॉपर थिकनेस में रख जाए, उस वैसा एक सॉल्वेंट मटेरियल। इट में बी अ वाटर, इट में बी अ अदर पार्टिकल एज वेल। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे समझ लो कि वी आर हैविंग अ चॉक और वो हमने चॉक डीप कर लिया इनटू द पॉट विच डू हैव अ इंक ओवर देयर। अब क्या होगा वहाँ पे? द मॉलिक्यूल ऑफ इंक गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चॉक। अंडरस्टूड। द मॉलिक्यूल ऑफ इंक इंक के जो पार्टिकल है, समझ लो ब्लू इंक है हमारे पास, तो ब्लू पिगमेंट्स होंगे जो ब्लू कलर इम्पर्ट कर रहा है टू दैट इंक, सो वो एड्सॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ चॉक। ऑन द अदर हैंड उसमें जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल में भी वाटर होगा या फिर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, ओके अल्कोहल वगैरह कोई भी। सो इसमें जो सॉल्वेंट होगा it get absorbed in the bulk of the chalk, okay it get absorbed in the bulk of the chalk only, and that's why the ink particle accumulate on the outer surface of the chalk and solvent molecule goes inside the chalk only। so यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रही है, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है एंड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है एंड एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सो उस प्रोसेस को सॉर्प्शन कहा जाता है। ओके गाइज, सॉर्प्शन यानी क्या? The process where both adsorption and absorption takes place simultaneously,
adsorption and absorption takes place simultaneously. Understood? And what is desorption? Desorption यानी process which is opposite of adsorption, जहाँ पे जो भी adsorbed material होगा on any particular surface, so वो उसका रिमूवल होगा या फिर ये वो निकल जाएगा फ्रॉम दैट सरफेस ओनली, सो दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन. ओके गाइज, सो इस वीडियो में हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ एडसॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, देन द टर्म्स इन्वॉल्वड इन एडसॉर्प्शन, दैट इज एडसॉर्बेंट, एडसॉर्बेट. ओके, अगेन रिकॉल कर लेते हैं व्हाट इज एडसॉर्बेंट. एडसॉर्बेंट यानी जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है वो एडसॉर्बेंट. एंड व्हाट इज एडसॉर्बेट? जो एडसॉर्ब हो रहा है दैट इज एडसॉर्बेट. यानी जनरली देखो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस का अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो बच्चों 3 स्टेट में गैस पार्टिकल इजीली एडसॉर्ब होते हैं. ओके, तो गैसियस पार्टिकल का नेचर ही है कि वो एडसॉर्ब हो जाए. एंड लिक्विड एंड सॉलिड जनरली प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर द एडसॉर्प्शन. अंडरस्टूड? तो इन केस मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन से दैट एडसॉर्बेंट आर लिक्विड एंड सॉलिड, जो कि सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर द एडसॉर्प्शन. एंड एडसॉर्बेट आर द गैसेस, जो कि एडसॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सरफेस ऑफ सॉलिड. अंडरस्टूड गाइस? सो बी रिमेंबर, do remember this thing: adsorption, adsorbent, adsorbate, desorption and sorption. Thank you very much.